this is the reason I wanted to wait, because yesterday's closing was the consolidation which was happening around 18600, and it was the structure was not bearish, but I still wanted to get a confirmation on a 1 hour close and then decide. So the confirmation happened. I don't really like the structure because very hard to trade when you have a resistance around 18725 levels on spot, where you saw the last fall happen. So that is the reason I don't really like this. So do not really go for a long or a buy trade. What will happen tomorrow? So basically, I am not really looking for a buy trade here. I am looking for a gap fill and then decide what to do. But let's see. I have to respect the structure. The structure looks good for a buy. All three, Bank Nifty, Nifty and Reliance, have closed above their respective sideways or bearish zones, but that can always change on a 1 hour close tomorrow. So we'll wait and watch. What happened today? So today I had given a short scalp, where the target also was met, but the trigger did not. Trigger was 1230 should make a new high. I'll look for a sell below 1 was a trade shared on all social channels. Target was VWAP break, and it broke VWAP and it reversed. So did not take this. There was a good opportunity in Bank Nifty, shared it yesterday. What was the opportunity? So basically yesterday there was a buy structure. I had mentioned if this high is not taken out, look for selling opportunities. First 3-minute candle took this high, so there was no selling opportunity here. There was only buying opportunity with stop loss of this. Now you don't buy here with a stop loss of this, very poor RR. So I wanted this to break 50 to break. It came around 70 levels, and once it came around 70 levels, you see this consolidation happening. And if you're watching my post market, I usually always go for a reversal above 10 moving average close. Until this consolidation, I think none of the 3-minute candle, if you look at this, none of the 3-minute candle has closed above 10 moving average. It was always closing below. So at the end, when it closed, the stop loss either becomes this, which is a safe stop loss, or becomes this, which is a very good RR, risk reward stop loss with a VWAP break target. As I mentioned, I like the closing for buyers, but I won't really buy here. Considering there's one more fact there, that Bank Nifty has filled its cap today on spot, Nifty hasn't. So I want that to happen first, and then let's see what's next. थैंक यू. निफ्टी में इसीलिए कल यही रीज़न था, मैं वेट करना चाहता था 1 घंटे का, क्योंकि अगर आप देखें तो कल पूरा कंसोलिडेशन मारा है उसने 18600 लेवल्स पे. तो यहाँ से अब वो कहाँ जाता, तो 1 आवर कैंडल ने डिसाइड करना था. प्रॉब्लम क्या है कि अब 1 आवर कैंडल जो उसने गैप भी दिया है और काफ़ी अच्छा क्लोजिंग भी मारा है. जब क्लोज हुआ 18700 के ऊपर क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का क्लोज है फ्रॉम प्रीवियस हाई. अब डे ट्रेडर कैसे ट्रेड करेगा इसको, जब स्पेशली जब 725 लेवल्स एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, तो मेरे को शॉर्ट नहीं करना इसको जब तक मुझे 700 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती. और जो मिली मुझे यहाँ पर उसका फॉलोअप नहीं मिला, और उसका फॉलोअप का मतलब इसका लो नहीं टूटा. और अगर आप एक और चीज़ देखें जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी स्पॉट ने अपना गैप फिल किया, निफ्टी ने नहीं किया, क्योंकि रिलायंस सपोर्ट कर रहा था इसको. तो देखते हैं. मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बाय तो नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि पहले ये गैप फिल हो. अब वो फर्स्ट 1 आवर में होता है तो फिर मैं देखूँगा क्या करना है, लेकिन अगर वो फर्स्ट 1 आवर में नहीं होता तो फिर मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. पर स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है बाइंग का, जो कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता. बैंक निफ्टी वापस काफ़ी दिनों से ये कर रही है, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही है उस रेंज वाले बॉक्स में. तो देखते हैं. निफ्टी में भी क्लोजिंग मैं तो नहीं कहूँगा बुलिश है, क्योंकि रेजिस्टेंस है अभी भी यहाँ पर ठीक है. रिलायंस का क्लोजिंग अच्छा है. निफ्टी इसमें सिस्टम ट्रेड में मैंने जो दिया था वो टारगेट अचीव हो गया, ट्रिगर अचीव नहीं हुआ, पर एंट्री भी सही था. बेसिकली ट्रिगर था 1230 को हाई बनाना था, और सेल बिलो 1 था, टारगेट VWAP ब्रेक था. बैंक निफ्टी में एक ट्रेड जो मैंने कल भी बात करी थी इस बारे में, जो कि बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था. बेसिकली मैंने बोला था कि यहाँ पे बाइंग स्ट्रक्चर्स हैं, और जब ऐसे होता है तो अगर इसका हाई नहीं टूटता तो ये बहुत अच्छा सेल स्ट्रक्चर बन सकता है.
जब आपके वॉल्यूम्स नहीं आए, वॉल्यूम्स जहाँ पर आज कुछ था नहीं अच्छा, कल थे वॉल्यूम्स, और इसका जब ये हाई टूटा तब इसको फिर आप सेल नहीं कर सकते, बाय कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस डे लो है जो कि बहुत ख़राब आ रहा है। तो मैं चाहता था इसको टूटने का और उसके बाद बाय करने का, जो कि नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर जब ये इसके पास आता है काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है, और आप रिवर्सल से आपको पता ही है मैं कैसे खेलता हूँ। जब 10 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है कोई भी 3 मिनट का कैंडल, मैं रिवर्सल लेता हूँ, स्टॉप लॉस रहता है यूजली ये सेफ स्टॉप लॉस। इस केस में सेफ स्टॉप लॉस ये था और बेटर आ रहा स्टॉप लॉस ये था, और काफ़ी देर तक 10 मिनट तक ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 10 मिनट से भी ज़्यादा, आधा घंटा ऑलमोस्ट वो यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, और 10 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज भी नहीं दिया उसने, और जब उसने दिया तो वो भी ब्रेक दिया और अच्छा खासा आ रहा था। ये बेसिकली मैंने कल बताया था अपने पोस्ट मार्केट में। अब जैसे मैंने बोला क्लोजिंग अच्छी लग रही है, पर गैप फिल के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा अभी। थैंक यू।